Now class 9C, we'll see some important questions of chemical changes and reactions, that what comes in your board examinations. Simply definitions are asked. This particular definitions are in form of fill in the blanks or select the answers or differentiations, and they ask the definition along with an example, means equation you have to give. Then simple balance equations are asked, then match the chemical reactions. We'll see one by one that what are the questions that are asked. The very first question we are talking about your we are going towards 1987 in your book, and in that they have asked you that give an example of an endothermic reaction. So it is your choice कि whatever reactions are there in your books of related to endothermic you can give. So your answer, I am writing one answer. So this is the case of an endothermic reaction. You know that endothermic reaction is always represented by a negative sign with the heat sign. T लिखा हो और नेगेटिव साइन डेल्टा लिखा हो और एनी वैल्यू इज़ बीन गिविंग, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक. तो ये क्वेश्चन था जो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 1987. Then we have one more question of 1989 also, you can see in your book. So there are different reactions given to you and they are asking you, and they have given you the options also, and in that you have to detect that what are there. So I am writing the question. Now in 1989 these reactions are given to you and they have given you the options also. Okay, this reaction can be classified as direct combination. Now by their looking the reaction, it is your duty to judge, please. Now this thing, if you see this reaction, this comes in your displacement reaction. So your answer will be what? Displacement reaction. Or instead of writing here, we can write down in form of answer, because you should know how the correct way of writing the answer. So first one is your displacement reaction. This option is given to you. You will write down the displacement reaction. Second reaction, this comes in direct combination. देखो element combine together to give you form compound. तो ये क्या है? This option direct combination is given to us. Then third, this particular reaction, if you focus on it, this is again it is a redox reaction, तो ये redox पे आ जाएगा. फिर फोर्थ रिएक्शन है ये वाला आपका, ये डबल डिकम्पोजिशन है ना, जो इंटरचेंजिंग ऑफ हो रहे हैं आपके रेडिकल्स. तो ये क्या है आपकी डबल डिकम्पोजिशन. प्लीज़ सी हाउ यू विल राइट डाउन योर आंसर. द फिफ्थ वन इज़ योर decomposition reaction. So you will write down your decomposition. So this is the way how you will write down the answer. This is one more question. Give a balanced equation for a direct combination reaction involving two elements, one of which is a neutral gas and other is a yellow non-metal. Now this thing, there are many of reactions given in your book but things are not mentioned, so I am telling you. देखो ये जो neutral gas है, ऑक्सीजन को neutral gas कहते हैं. एंड जो येलो नॉन मेटल है, सल्फर को येलो नॉन मेटल कहते हैं. तो O2 इसके साथ दिस रिएक्शन इज गिवन टू यू. सो योर आंसर विल बी दिस मच एंड दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. दिस वे यू कैन राइट डाउन योर आंसर. Now this is one more equation, reaction given to you, two elements, one of which is a neutral gas and other is a monovalent. देखो monovalent मतलब a metal whose valency is 1. यहाँ पे divalent भी हो सकता था, trivalent भी हो सकता है. It is their choice. It's not that. अब monovalent में सोडियम कैन ऑल्सो कम, पोटेशियम कैन ऑल्सो कम, दोनों का रिएक्शन एक ही होता है. तो आपने सोडियम लिया, एक मोनोवेलेंट मेटल, ऑक्सीजन एक न्यूट्रल गैस है, रिएक्ट करा, इट विल गिव यू Na2O. बैलेंसिंग करने के लिए यू कैन पुट इट दिस थिंग 2 here 4 here. अब Na का भी यही है और K का भी यही है, बिकॉज बोथ हैव द सेम वैलेंसी. ठीक है. बट सपोज इंस्टेड ऑफ मोनोवेलेंट अ टीचर गिव यू अ डाईवेलेंट मेटल, आ सकता है ना. तो डाईवेलेंट में आपके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये दोनों आ जाएंगे इसमें. सो प्लीज़ फोकस ऑन इट. इन योर बुक मैग्नीशियम गिवन, कैल्शियम का भी वैसे ही बनेगा. सो सपोज आई एम राइटिंग कैल्शियम Ca+O2, ये न्यूट्रल गैस है, गिव यू Ca, कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा. एंड बैलेंस इट अप बाई 2, पुट इट 2 over here. तो मैग्नीशियम का भी Ca की जगह आप Mg लगा दीजिए, तो गिव यू आर दिस थिंग. प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ नॉट दैट नथिंग इज़ आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि बुक्स में एक दिया रहता है तो दूसरा आपको खुद पता होना चाहिए. दिस इज़ द केस ऑफ डाईवेलेंट, राइट. नाउ वन मोर क्वेश्चन. टू कंपाउंड्स रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड. अब ये वीक एसिड है, दे कैन गिव यू स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो. प्लीज़ अब वीक एसिड का देख लो. दो कंपाउंड है, जैसे CO2, ये आपकी बुक में दिया रखा है.
वाटर, बोथ आर कंपाउंड. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो दे विल गिव यू अ कार्बोनिक एसिड. नाउ प्लीज चिल्ड्रन, यू शुड नो व्हाट यू आर राइटिंग, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कार्बोनिक एसिड कम्स इन द वीक एसिड, ठीक है ना, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं. दिस इज़ द केस ऑफ द वीक एसिड. अच्छा, ये भी ये पता होना चाहिए आपको, इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. ये सोडियम ऑक्साइड. सो यू कैन राइट डाउन पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड है ना. तो फिर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए. अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर दी जाए तो सल्फ्यूरस एसिड को, दिस कैन बी डन. Are you getting my point? Please children, you should know what is the compounds are made and name of the compounds. ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है. Now child, this is one more a question. Give balance equation for the following reactions of the synthesis involving formation. This synthesis reaction है यानी direct reaction है. एक acid you have to make from a sulfur dioxide. This we have made just now. SO2 reacts with water, gives you sulfurous acid. देन दे आर आस्किंग यू एन एल्किली. देखो एल्किलीज जैसे NaOH KOH दोनों एल्किलीज में आते हैं. यहाँ पे दे हैव गिवन यू फ्रॉम अ बेसिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड दे हैव मेजरमेंट. अगर सोडियम ऑक्साइड नहीं दिया होता तो भी आप कुछ भी ले सकते थे, पोटेशियम भी ले सकते थे और पोटेशियम ऑक्साइड भी यू कैन टेक एंड सोडियम ऑक्साइड ऑल्सो. सो वॉट यू हैव टू डू, द एल्किली यू हैव टू मेड NaOH, दे हैव गिवन सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम ऑक्साइड इज दिस, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा NaOH, they will give you balance the equation. Now please again I am telling you, सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ के बदले सपोज करो I give you पोटेशियम ऑक्साइड से आपको बनाना है एल्किली, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, K2O प्लस वाटर गिव यू ट्वाइस ऑफ KOH, राइट. नाउ दे आर आस्किंग यू अ सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम अ ट्राईवैलेंट मेटल. ट्राईवैलेंट मेटल वो मेटल होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है. Al इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. कलर्ड गैस, देखो क्लोरीन जो होती है, ये जो क्लोरीन है ये कलर्ड गैस होती है, ग्रीनिश येलोइश गैस होती है, ठीक है, ग्रीनिश येलोइश गैस होती है, ठीक है. ये सॉल्ट देगा. अब यहाँ पे टीचर ने आपको ट्राईवैलेंट दिया रखा है ना. टीचर कैन गिव यू अ डाईवैलेंट मेटल, है ना, इंस्टेड ऑफ ट्राईवैलेंट. तो आप क्या लिख सकते हो, बहुत से एग्जाम्पल है. Fe है, ठीक, तो Fe को यूज़ कर सकते हो. अब ऐसा भी हो सकता है ट्राईवैलेंट मेटल ऑफ आयरन, तो Fe का ये भी बना सकते हो, ठीक है. यहाँ Fe की वैलेंसी 3 है. तो बेटा थोड़ा सा यू हैव टू फोकस व्हाट दे आर आस्किंग यू, है ना. समटाइम्स दे कैन आस्क यू. एक और क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से दे देते हैं कि डाईवैलेंट मेटल एंड येलो सॉलिड, है ना. अब येलो सॉलिड आपने पढ़ा है, सल्फ़र था अभी, और यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, Fe ले लीजिए. तो क्या हुआ, FeS बन गया. सपोज़ करो मैंने आपको Zn दे दिया और S दे दिया, इनकी वैलेंसीज 2 है, तो क्या हुआ, ZnS हो गया. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो इन योर बुक्स, यू मस्ट हैव सीन, ये सब इनसॉल्युबल्स होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर. ये जो वर्ड आ रहे हैं ना ये आपके इनसॉल्युबल इन वाटर रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ये सॉल्युबल है, दिस इज सॉल्युबल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज सॉल्युबल. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शुड नो दैट व्हाट आर देयर. अब जैसे डाईवैलेंट में तो Pb भी आ जाएगा और येलो सॉलिड में सल्फ़र आ जाएगा, तो क्या है, PbS इज ऑल्सो देयर. ये क्या है, इनसॉल्युबल. बहुत देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट मैंशन्ड इन द बुक्स, तो यू शुड नो. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सर ऑलवेज प्रेफर द इनडायरेक्ट क्वेश्चन. प्लीज़ मेक श्योर लर्न ऑल द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड व्हाट द रिएक्शन आर फॉर्मिंग, बाई प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, उनका नेम क्या है, क्या वो गैस हैं तो क्या है, किस कलर की हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दीज 2 मोर क्वेश्चन, ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 5 मेन रिएक्शंस में दिया रखा है, मैंने इनकम्प्लीट लिखा है. दे आर आस्किंग अमोनियम सॉल्ट दैट गिव्स यू अ बेसिक गैस. ये इक्वेशन में यू हैव टू राइट डाउन, गिव द कन्वर्जन इक्वेशन. इट कैन आस्क और दे कैन आस्क यू गिव द बैलेंस इक्वेशन, हाउ अमोनियम सॉल्ट गिव यू अ बेसिक गैस. अमोनियम सॉल्ट NH4Cl, it is a reaction that is given to you. It reacts with calcium hydroxide, so this particular reaction gives you ammonia gas,
ठीक है, अमोनिया गैस मिलती है। और क्या क्या मिल सकता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर विल बी फॉर्म, बैलेंस इट, पुट 2 over here, right, put 2 over here. So this is the case of your ammonium salt that gives you a basic gas. ये है basic gas अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या है, एक आपकी बेसिक सॉल्ट गैस है। नाउ वन मोर, सॉल्युबल लेड सॉल्ट, 2 insoluble लेड सॉल्ट। इनसॉल्युबल मतलब पीपीटी दे दिया ना उसने, वाइट पीपीटी, तो कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट आप ले, लेड नाइट्रेट ले लीजिए। लेड नाइट्रेट इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट जो आपको देगा एक वाइट पीपीटी का सॉल्ट। अब आपने किसके साथ आपकी बुक में रिएक्शन दिया रखा है, NaCl के साथ। सो PbCl2 प्लस NaNO3। ये जो PbCl2 है ये क्या है आपका वाइट पीपीटी है। बैलेंस इट अप, पुट 2 over here and put 2 over here. So this is the answer. This way you have to give your answer. इनडायरेक्ट है, इसमें इक्वेशन याद करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा लेड सॉल्ट है आपके कोर्स में दिया रखा है। This question I have already posted you, but still I want to discuss with you. That's why I have written the answer in the book. ये मैच द टेबल है, इस फॉर्म में भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये रखे हैं इन फॉर्म में, ABCD में पॉसिबल इक्वेशन फॉर्म्स दे हैव गिवन यू, ऑप्शंस आर गिवन टू यू। नाउ यू हैव टू लुक एंड सी दैट व्हाट equations are there and in which case they will come across. Now see AB, when it is heated, A plus B, what it will give you. तो दिस इज़ थर्मल डिसोसिएशन पॉइंट, क्योंकि थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है, हीट भी होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। एंड दिस पॉइंट ए बी, ये क्या हो गया है, ये ब्रेक हो रहा है, गिव्स यू ए एंड बी, तो दिस कम्स इन डिकम्पोजिशन, टू ट्राई ना, ए बी इज बीन द कंपाउंड एज ब्रेक इन टू दिस रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी, दैट्स वाई इट्स कम्स इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ दीज थिंग्स इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स, तो ये डबल डिकम्पोजिशन में आता है। ये देखो डबल डिकम्पोजिशन, ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे आएगा। देखो एक्स है, एक्स ने इधर वाई को रिप्लेस करा, खुद जाके लग गया है, तो ये क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो ये डी आ गया डिस्प्लेसमेंट में। अब ये एक्स प्लस वाई हीट, ये क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई, और ये ट्राइंगल लगा हुआ है ना, ट्राइंगल लगा है माइनस का, तो ये एंडोथर्मिक है। अगर पॉजिटिव लगा होता तो इट वुड बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वे यू कैन हैव अ आइडिया, है ना। देखो मैंने ये भी इक्वेशन, दिस एग्जाम्पल ऑल्सो हैव, ये भी आते हैं बोर्ड्स में सेलेक्ट करके, यू हैव टू पॉइंट आउट योर आंसर्स। नाउ लेट्स, दिस इज द डायरेक्ट आंसर आई हैव गिवन यू, बट लेट्स फोकस ऑन यू। सपोज दीज ऑप्शंस आर नॉट गिवन टू, देन हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। वैसे तो 100% ऑप्शंस आते हैं बोर्ड में, लेकिन समटाइम्स दे डोंट गिव, देन यू शुड अंडरस्टैंड। लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट। एन एक्टिव मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज करो एक्टिव मेटल है जिंक, एक्टिव मेटल में आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दे देगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये गैस क्या रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। यही आंसर है, यही लिखा है हम लोगों ने। Now next is a metallic nitrate undergoes thermal decomposition and they give you a colored gas. तो metallic nitrate जो है वो thermal decomposition में जाएगा और colored gas देगा। Now let's focus on it. So you can use any of the examples. Suppose करो मैंने कैल्शियम नाइट्रेट लिया है, क्योंकि कोई स्पेसिफाई तो करा नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन जा रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड देगा। NO2 जो है ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए यू कैन पुट इट ओवर हियर। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, ठीक है बेटा। सो दिस थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, कभी क्या आ जाए तो। नाउ थर्ड क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू two gases, one of them is neutral combined by absorption of light. So two gases are there. तो यहाँ पे क्या है, H2 प्लस Cl2, दे गिव यू अ, ठीक है, यू कैन राइट डाउन सनलाइट। फिर अब एक दिया रखा है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट किसी एल्कली के साथ करा लो। सपोज करो NH4Cl आपने NaOH के साथ करा दिया, है ना, तो ये आपको NaCl दे दे, अमोनिया गैस दे दे, वाटर दे दे, या कैल्शियम ऑक्साइड वाला पीछे आपने दिया रखा था उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन हैव योर आंसर। देन तो ये गिव यू योर अमोनिया गैस, तो गैस ही मांगी ना और अमोनिया ऑप्शन गिवन हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, अमोनिया। ऑप्शंस गिवन है तो वही जो ऑप्शन दिए रखे, यू हैव टू गिव इट द
सेम थिंग, इसमें जो आंसर होगा आपका ये वाला, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन गिवन है आपका, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर। सपोज अगर नहीं गिवन है ऑप्शन तो कैसे आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अमोनिया and a gas, neutral gas, so that is also a case. Now let's focus on it. Ammonia reacts with a neutral gas, मैंने बताया था ना कि ये न्यूट्रल गैस होती है। अमोनिया को याद रखना, हमेशा ये बेसिक गैस होती है, ठीक है। सो इट इज़ 4NO प्लस 6 वाटर प्लस हीट, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 5 लगा लो, आई एम नॉट बैलेंसिंग इट। सो ये जो है ये आपका आंसर है। ऑप्शन में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है, तो आपको समझ में आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड ये कलरलेस गैस होती है। तो दिस वे यू हैव टू गिव योर आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन तो यू कैन डू इट ना, डिफ्रेंसिएशन बुक्स में आपकी डेफिनेशंस दी रखी है, तो यू कैन मार्क, आई हैव मार्क्ड द डेफिनेशन, आई हैव आस्क्ड यू टू मार्क इट एंड यू कैन जस्ट लर्न दैट। इफ यू वांट टू गिव वन इक्वेशन यू कैन गिव द इक्वेशन ऑल्सो। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो यू कैन डू इट। ये इक्वेशंस हैं, equations भी I think we have done it, so you can now you know what equations are there, how you have to write down. तो direct reaction देखो, phosphorus reaction neutral gas के साथ है, let's do it if you want to. Now question 3 है, they have given you phosphorus, they have, if you see that question in unit test paper, तो they have asked you phosphorus reacts with neutral gas, ठीक है। this they have और दिया भी रखा है, it is a direct combination. Now you know this is P2O5, बैलेंसिंग के लिए पुट इट टू 4 यहाँ लगा दिए, यहाँ 5 लगा दिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड है आपका सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड फॉर्म यू इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बाय डबल डिकम्पोजिशन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन। तो आपने सिंपल सॉल्ट लेड का दिया रखा है, NaCl NaNO3 PbCl2, बैलेंस करने के लिए 2H पुट हो गई या 2 हो गई, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन दिया रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन, और दिया भी रखा है सॉल्ट, सॉल्ट तो नहीं दिया लेकिन बट दे आस्किंग यू नाइट्रोजन गैस इज बीन रिलीज। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में आपके पास ये एक ऑप्शन है अमोनियम डाइक्रोमेट का, और जब आप इसको हीट करोगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, और दिया ही रखा है नाइट्रोजन गैस होएगी तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होएगी। फोर्थ ऑप्शन भी दे हैव गिवन यू, दे आर आस्किंग यू सिंथेसिस रिएक्शन इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ आयरन, आयरन दिया रखा है, तो मेटल एक नॉन मेटल दिया रखा है और आयरन देगा जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। नाउ फिफ्थ ऑप्शन दे हैव गिवन यू डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट गिव यू सिल्वर मेटल, तो सिल्वर मेटल का है तो भाई सिल्वर नाइट्रेट आप लोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करोगे तो ये Ag देगा आपको और NO2 देगा प्लस O2, बैलेंस कर लीजिए आप 2 then 2। दीज आर द वे हाउ यू हैव टू राइट योर इक्वेशंस। याद करनी पड़ेंगी क्योंकि यू आर अ फर्स्ट टाइम कंज्यूमर, तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न द इक्वेशंस। Now this is again the question number 6 in your unit test paper. Answer is I have already sent you, but there is a way of doing this this particular question, because you are new. Then how to predict that, you know, that they have given you the salts and they have asked you that give the product that is formed and the color that is there. Now color is not mentioned in the book in this chapter, but it is mentioned in the book at the back in the practical chemistry portion, so that is there in your exams, but please focus on it how you can attempt the question. देखो ये पोर्शन है कॉपर नाइट्रेट का, ये दे आर आस्किंग यू इन थर्मल डिकम्पोजिशन केस, तो कॉपर नाइट्रेट, दिस इज द केस ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। व्हेन इट गोज फॉर डिकम्पोजिशन इट गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड प्लस your NO2 this thing and O2, है ना, balance it up, you will get the answer, right। now this copper oxide, ये जो copper oxide है ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये सब तो आपकी गैसेज है, क्योंकि देखो इनने पूछा है नेम द सॉलिड रेसिड्यूअल प्रोडक्ट, इनमें से सॉलिड कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों तो गैसेज हैं। अगर गैस पूछते देन यू विल राइट डाउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है।
इनने क्या पूछा है, सॉलिड रेसिडुअल प्रोडक्ट, तो दिस इज़ योर सॉलिड रेसिडुअल प्रोडक्ट, दैट इज़ योर, आपका आंसर क्या होगा, इक्वेशन नहीं लिखनी है आपको, आपको सिर्फ लिखना है कॉपर ऑक्साइड, एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ व्हाट, ब्लैक इन कलर। तो ये आपका रेसिड्यू है जो कि ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया रखा है टेबल फॉर्म में, लेकिन ये ब्लैक कलर मेंशन नहीं है। नाउ अमोनियम डाइक्रोमेट, दिस इज़ देयर इन योर कोर्स ऑन पेज नंबर 25 में। सो अमोनियम डाइक्रोमेट इज़ दिस थिंग. So when it go for decomposition, it's give you this equation. I am writing the equation directly. Again I am telling you, they are not asking you the gas involved. गैस होती तो तुम नाइट्रोजन गैस लिख देते, लेकिन ये तुम्हारा सॉलिड प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड, और ये किस कलर का है, बुक में दिया रखा है आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है। नाउ फोकस ऑन द जिंक कार्बोनेट पार्ट. तो इफ़ यू सी द जिंक कार्बोनेट, ठीक है, so when you see the zinc carbonate portion, it goes for heating, it gives you zinc oxide plus CO2, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड जो है आपका, ये आपका रेसिडुअल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड में देखो, मैंने जब कोई वीडियो बनाई थी तो आई थिंक आई हैव शोन यू द डिफरेंट कलर्स ऑफ दिस थिंग। जिंक ऑक्साइड जो होता है ये येलो कलर का होता है जब ये हॉट होता है, ठीक है। ये वर्ड ज़रूर लिखना, क्योंकि कोल्ड में अलग कलर्स होते हैं और हॉट में अलग होता है, तो ये येलो होता है व्हेन इट इज़ हॉट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द लेड नाइट्रेट ऑल्सो। तो PbNO3 को भी देख लेते हैं कि हाउ, ये मैं इक्वेशन बता रही हूँ, देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन ओवर हियर, बट यू शुड नो कि हाउ यू कैन, है ना, जज और राइट डाउन। तो Pb इज़ बीन देयर, सो Pb नाइट्रेट आप देख के चलोगे। सो इन केस ऑफ दैट अगेन Pb नाइट्रेट बिल्कुल कॉपर की तरह ही चलेगा, PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 ट्वाइस, ठीक है। ये lead oxide is your case, and if you focus on the lead oxide जो होता है वो भी येलो कलर का होता है आपका, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देख के चलोगे, देखो ये सब चीज़ें आपकी पेज नंबर 24 पे दिया रखा है, तो डोंट गेट वरीड अबाउट इट कि फ्रॉम वेयर मैम इज़ राइटिंग, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, देखो ये आपको दिया रखा है, आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सब याद कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये फॉर्म करेगा और साथ में वाटर, तो दिस इज़ वॉट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली विच कलर, इट इज़ वाइट इन कलर। प्लीज़ मेक श्योर दैट वॉट यू आर सीइंग। और अगर कभी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, नेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, इफ़ यू डोंट गेट यू कैन टाइप इन ऑन द नेट एंड यू कैन गेट द कलर्स ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस थिंग you can have a look and you can focus on it, right? Now children, I think I have already covered you the maximum questions that are complicated. एक क्वेश्चन था जो आपका 1986 में आया था, तो उसमें लिखा हुआ था वाई सिल्वर नाइट्रेट इज केप्ट इन द कलर्ड वाटर। देखो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो लाइट से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए हम कलर्ड वाटर से लेते हैं। ये क्या करता है, ये सनलाइट होती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोकेमिकल रिएक्शन बना लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको कलर्ड बॉटल में लेते हैं। आई हैव गिवन यू द आंसर, बट आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के जो भी सॉल्ट्स होते हैं उनको हमेशा कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है, क्योंकि दे गो फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी और सनलाइट। और यहाँ पे ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है बाद में Ag2Br एंड Br2 बना लेता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कलर्ड बॉटल में रखते हैं। तो आई हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस विच आर कॉम्प्लिकेटेड, विच यू मस्ट हैव कम अक्रॉस difficulties in solving it, so I have done that. Still if you have any problem you can message me up so that I could make a video and I can post that, and you can do how we can complete, or how, what is the way to complete the reactions.